ابھی آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ میں سرکٹ ہاؤس میں وکلا کی جانب سے سالانہ عشائیہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں کوئی 25 کنال کے قریب زمین کا جو اضافہ ہوا اس کی لوح کا افتتاح کیا، پھر کوٹدو میں نئے جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کرنے کے بعد آج مظفر گڑھ میں ایک نئے جوڈیشل کمپلیکس کی بنیاد رکھ کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس منصوبے کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب جب بھی ملتے تھے اس منصوبے کا ذکر کیا کرتے تھے، اور میرا ان سے وعدہ تھا کہ آپ کے اسی ٹینیور کے اندر انشاءاللہ العزیز اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کچھ مسائل کے باوجود، جس کو محترم جناب امیر بھٹی صاحب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیا اور ان کے آفیسرز کو متواتر بلوایا، جس کے بعد ہم اس قابل ہو سکے کہ آج اس منصوبے کا افتتاح کر سکیں۔ جو وکلا کالونی کی بات ہوئی، مجھے آج افتتاح کے موقع پر یہ بتایا گیا کہ کچھ اس معاملے میں لٹیگیشن ہے اور جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو میں نے صدر صاحب سے گزارش کی ہے کہ وکلا سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیس کو کس طرح لگوانا ہے، تو برائے مہربانی اپنے ان کیسز کا فیصلہ کروائیے۔ جیسے ہی ان مقدمات کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کے اس مقدمے کی پیروی کروں۔ مختصر بات یہ کروں گا کہ ان دو مسائل کی بات نہیں، کولیکٹیولی وکلا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ہمہ وقت میں نے کوشش کی ہے کہ وکلا کے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے کام کیا جائے۔ کووڈ کے دنوں میں میری کوشش کی وجہ سے ایک خطیر گرانٹ جو ہے پنجاب بار کونسل کے ذریعے وکلا کو دی گئی، اور اب پھر میری کوشش کے ذریعے حکومت پنجاب نے تقریباً 25 کروڑ روپیہ پورے پنجاب کی بار ایسوسی ایشنز کو گرانٹ کے لیے منظور کر لیا ہے، اور یہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر 2-3 دن کے اندر یہ متعلقہ صدور اور سیکٹریز کو بلوا کے وہ چیک جو ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ اب اختتامی گفتگو کرتے وقت میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ آپ کی اور ہماری کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کے پاس اس معاشرے کے وہ لوگ جو اپنے حقوق سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اور آپ کے ذریعے وہ اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ اب آپ کی اور ہماری یہ کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ تیزی کے ساتھ ان لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ ہو۔ یہ آپ کی اور ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس میں ہم کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہم دونوں مل کر اور تندہی کے ساتھ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ پھر اگر ہم اس معاملے میں سستی اور کوتاہی کے مرتکب ہوں تو جہاں لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے تحت ایک وکیل مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے، وہیں ایک جج بھی
اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کرتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں فریقین کو تیزی کے ساتھ پسے ہوئے طبقوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورونا کے باوجود ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے پورے پنجاب میں جتنی تیزی کے ساتھ سپٹمبر سے لے کے اور دسمبر تک مقدمات کا فیصلہ کیا، ہم نے پچھلے سال سے کوئی 2.25 لاکھ زیادہ مقدمات کا فیصلہ کیا، اور صرف 12 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک ایک ہفتے 6 دن کے فگرز وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم نے 72,000 کیسز کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پچھلے سال اسی ہفتے کے دوران ہم نے کوئی 49,000 کیسز کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک ہفتے میں 22,000 زیادہ کیسز ایز کمپیئر ٹو دی لاسٹ ایئر، جبکہ اس وقت ہم کورونا کی سنگینی میں بھی موجود ہیں۔ اس وقت کورونا کے حالات کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی پالیسی ہے، احتیاط کی بھی پالیسی ہے، اس کے باوجود ان نتائج کے آنے میں جہاں میں عدلیہ کے اراکین کا ممنون و مشکور ہوں، وہاں میں آپ وکلاء کا بھی ممنون ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر یہ مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کا تعاون جو ہے اس سلسلے میں وہ قابل تعریف ہے، اور انشاءاللہ اگر اسی طرح رہا تو جو پہلے 6 ماہ میں کورونا کی وجہ سے مقدمات کی پینڈنسی بڑھ گئی تھی، ہم جلد از جلد اس کو دور کر لیں گے، اور انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا کہ جس میں ہمارے پاس مقدمات کی تاریخ جو ہے انتہائی کمی جو ہے انتہائی تاخیر انتہائی کم ترین سطح پر لے کے آ جائیں گے۔ اس موقع پر میں اپنے نوجوان وکلاء سے، جو میں ہر جگہ کرتا ہوں اور اس بیلٹ میں بالخصوص کرتا ہوں، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ اب ہمارے جوڈیشل سروس میں جو سروس سٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے، سیلری سٹرکچر بہت اچھا ہے، مہربانی کیجئے تیاری کر کے ان امتحانات میں اپیئر ہوں۔ اس سال ہم نے اب سال میں دوسری دفعہ ایگزام لے لیا ہے، تو آپ لوگ جو سول جج کے اہل ہیں نوجوان لڑکے، وہ باضابطہ تیاری کر کے اس ایگزام میں، اور جو ایڈیشنل سیشن جج کے اہل ہیں وہ اس ایگزام میں تیاری کریں۔ اور لیکن ایک بات کہوں گا کہ امتحان کو زندگی میں کسی سٹیج پر بھی دینا ہو، اس کو کبھی کیجول نہ لیں، امتحان کو امتحان سمجھ کر لیں اور اس کی باضابطہ تیاری کریں۔ میری یہ خواہش ہے کہ اس خطے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ عدلیہ میں آئیں، اور وہ جو کمی ہے اس خطے کے لوگوں کی اس عدلیہ میں، اس کو پورا کریں۔ میں اس لیے بار بار ہر بار میں اور ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ ایسے ایگزامز کی تیاری کریں، آپ عدلیہ کا حصہ بنیں، اور وہاں بن کے پھر لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں کہ ہم آپ لوگوں کے پاس بہت تاخیر کے ساتھ پہنچے، موجودہ صدر ہوں یا آنے والی انتظامیہ ہو، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ جب بھی آپ کی بار کے لیے کوئی کلیکٹیو ایشو ہو، آپ ہمارے پاس بلا جھجک تشریف لائیں، نہیں تو ہمیں کسی طرح کنوے کر دیں، رجسٹرار صاحب کو کنوے کر دیں، اپنے انسپیکشن جج صاحب کو کنوے کر دیں۔ ہماری اولین کوشش ہوگی کہ بار کے مسائل کو پرائرٹی کی بنیاد پہ حل کیا جائے۔ شکریہ۔
मुजफ्फरगढ़ सर्किट हाउस में वकला की जानिब से सालाना इशाइये का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं हर बार में जो कहता हूं इस बार में भी वही ऐलान कर रहा हूं। मेरी ख्वाहिश कि इस खित्ते के लोग तैयारी कर इम्तिहानात में हिस्सा लें और अदलिया का हिस्सा बने ताकि इस खित्ते की जो महरूमियां हैं वो दूर की जा सकें। उन्होंने कहा कि हमने एक हफ्ते के अंदर 72,000 रिकॉर्ड केसेस निपटाए हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया और वकला दोनों मिलकर शहरियों को इंसाफ फराहम करें। जब ये दोनों स्टेक होल्डर्स मिलेंगे तो उसके बाद ही मामलात हल होते दिखाई देंगे। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तरक्याती मंसूबों का इजलास हुआ। पार्लियामेंटेरियन अरकान असम्बली से तरक्याती कामों की तजावीज़ तलब की गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। का मुतवक्के दौरा मुल्तान के हवाले से मुल्तान तरक्याती पैकेज की तैयारियां शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक, वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक समेत अरकान सूबाई असम्बली और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे और बन जाए क्योंकि ये बड़ी आबादी वाला शहर है और रिक्वायरमेंट भी है। इस तरह हमारी आईटी यूनिवर्सिटी का एक हमने सिचुएशन यहाँ पे दी है। तीसरा हमारे जो सीवरेज के मसाइल हैं मुल्तान के, जो पूरा आधे से ज्यादा मुल्तान डूबा रहता है, वो मेगा प्रोजेक्ट सीवरेज का हम वो भी चाह रहे हैं कि एक सीवरेज यहाँ पर हो जाए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टा का कहना था कि शहर में सीवरेज और सड़कों की तामीर समेत कई मंसूबे शामिल किए जाएंगे, जिनमें हेड मोहम्मद वाला रोड की कशादगी का मंसूबा शामिल है। तमाम अरकान असम्बली से 5 बड़ी स्कीमें तलब की गई हैं। मुल्तान पैकेज के हवाले से भी हमने डिस्कशन की और जो हमने मंडियां शिफ्ट करनी है बाहर, चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन पे उस पर भी बातचीत हुई और बाकी जनरल जो हमारा का प्रोफाइल है वो सारा डिस्कस हुआ है। इजलास में वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर, रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, MPA वासिफ रां, MPA सबीन गुल समेत दीगर अरकान असम्बली ने हल्के के मसाइल और तरक्याती स्कीमों की तजावीज से आगाह किया। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान हुजूरी बाग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो चुकी है। मजीद जानेंगे मोहम्मद इब्राहिम से। इब्राहिम, बताइएगा क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई? जी बिल्कुल, बात करें मुल्तान हजूरी बाग रोड की तो ये रोड जो है काफी अरसा दराज से जो है टूट फूट का शिकार है। वक्फे से जो है ये सड़क टूट फूट का शिकार है। मुख्तलिफ जगहों पर खड्डे भी पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक तो मुतासिर हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ हादसात भी जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हजूरी बाग रोड की अहमियत के बारे में बात करें तो ये एक अहम शराह है शहर की। यहाँ एक कमर्शियल एरिया है पूरा और ये रोड 9 नंबर से घंटा घर के दरमियान है, तो ये काफी ज्यादा अहम शराह मानी जाती है। हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये कब से कंडीशन ऐसी है सड़क। अच्छा, आप बताइएगा कंडीशन कब से है? कंडीशन यही है कि 6 साल से यही हाल है गड्ढे का और इस कदर परेशान है शहरी। यकीन करें, मेरी इधर शॉप है सामने, अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें तो शॉप मेरी को, तो इस कदर मिट्टी है, दिन में 3-3, 4-4 बार सफाई करते हैं। इस गड्ढे के इतने परेशान है, वो मिनी मेट्रो गुजरती है तो कस्टमर और चीज ज्यादातर हमारे पास फूड आइटम्स इस तरह हैं कि मतलब मायोनीज वगैरह हो गई फूड, और उसके बाद आपको पता है डिस्पोजेबल खाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो टोटली यानी कि उसका मट्टी शट्टी लगने के बाद वो किसी हाल नहीं रहता। ये आप बताएं कि कभी शिकायत वगैरह की है, कोई दरखास्त वगैरह दी है? जी आज मुतअद्दिद बार हमने कहा है, लेकिन हुकाम वालों ने इस पर नोटिस नहीं लिया। और वैसे भी गालिबन मैं कोई मुखालफाना बात नहीं कर रहा, रिकॉर्ड के पेश नजर ये जो सड़क जो खड्डा बना हुआ है ये पिछली हुकूमत का तोहफा बना हुआ है। उन्होंने इस पर मेरी नजर में खामखा यहाँ पर गटर बनाया था, लेकिन उसकी वो डिस्प्ले में वो नहीं। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें करवाई हैं जमा, लेकिन ताहाल उस पर कोई अमल ना हो सके। इस हवाले से इनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस रोड को दोबारा से जल्द इस रोड को तामीर किया जाए। इब्राहिम, आपका शुक्रिया। डीजे खान के पत्थर बाजार में सीवरेज के नाकिस निजाम ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। पत्थर बाजार में गंदे पानी की वजह से पैदल चलना नामुमकिन हो गया। मौसम मुल्क ने साइकिल पर बैठकर सीवरेज के मसाइल पर रिपोर्ट बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। खान शहर डिवीजनल हेडक्वार्टर है और यहाँ पर शायद गलियों के अंदर, मेन मार्केट्स के अंदर, बाजारों के अंदर चलना आसान काम नहीं है, तो हमने एक साइकिल लिया है और साइकिल पर निकलकर हम आपको शहर का विजिट करवाएंगे, क्योंकि हर तरफ गंदा पानी है
और सिर्फ रिक्शा साइकिल पे जाया जा सकता है या मोटरसाइकिल पे। तो आगे चलेंगे हम, इस रिपोर्ट में आपको तमाम तर चीजें बताएंगे। डीजी खान में सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। डीजी खान में सीवरेज की वजह से शहर में जगह जगह गंदा पानी जमा रहना मामूल बनता जा रहा है, जिससे शहरी तंग आ चुके हैं। कहते हैं शहर का अल्लाह ही हाफिज है। तंग थे खड़े, परेशानी दुकाना बंद हैं सारिया, कारोबार सारा रुकिया पाए। असां कमेटी गए उथा वञा के, लेकिन सारा काम नहीं थी ना पिया। लिहाजा मेहरबानी करके इनको पानी एडो खत्म थिया वञे, सारी जो है ना मुश्किल आसान कर दे। डीजी खान पत्थर बाजार में गटरों का गंदा पानी जमा होने के बायस रास्ते बंद होकर रह गए हैं। पत्थर बाजार में गंदे पानी की वजह से चलना तो दूर की बात, किसी सवारी पर भी गुजरना महाल हो गया है। पैदल तो जाना यहाँ पर मुश्किल था, तो इसलिए मैं साइकिल पे यहाँ पे आ गया हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, नीचे आ जाए जल्दी से। ये ऐसे ही रहता है आपके यहाँ पे? यहाँ हमेशा ऐसे ही रहता है। अच्छा, जब बारिश, इधर आ जाओ आगे। हाँ, आके बात करें। जब बारिश आती है ना, ये तब यहाँ अब ये क्या क्यों हुआ है? ये गटर का मसला ब्लॉकिंग की वजह से ही। डीजी खान में ब्लॉक 48, मुशर्रफ टैंकी और पत्थर बाजार में गंदे पानी की वजह से घरों का रास्ता भी बंद होकर रह गया है, जबकि कारोबारी जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। डेरा गाजी खान में जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी और उसके साथ लोगों का सर्वाइवल इस वक्त मजीद मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसके लिए ना तो इंतजामिया कुछ सोच रही है और ना ही हुकूमती नुमाइंदे जिन्होंने वादे किए थे उन्होंने कोई बड़ा काम किया। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। मियांवाली में 2017 में शुरू होने वाला पिपला क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाना था। अब तक मुकम्मल होने वाले तामीराती काम खिलाड़ियों ने गैर मेयारी करार दे दिए। हमें रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। क्रिकेट स्टेडियम तहसील पिपला का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। 2017 में शुरू होने वाला मंसूबा 7.5 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल के अंदर मुकम्मल होना था। मंसूबे की सुस्त रवि का मामला तो अपनी जगह है, मगर इस वक्त तक मुकम्मल होने वाले तामीराती काम से खिलाड़ी गैर मुतमईन हैं। उनका कहना है कि प्रैक्टिस विकेट में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। 4 में से 1 विकेट खेल के काबिल है। जो हमारी विकेट बनी हुई है, 4 जो प्रैक्टिस के लिए नेट बनाया है, वो बहुत गैर मेयारी है। जहाँ पे बॉल गिरता है वही जगह फट जाती है। बहुत ही कम सीमेंट उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो विकेट बना रहे हैं ड्रा विकेट, उसका जो है काम वो भी सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक वो भी उसी तरह पड़ा है। 2 महीने हो गए इसी तरह पड़ा है, पता नहीं कब मुकम्मल। खिलाड़ियों ने एक निजी इदारे के ग्राउंड का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों मकाम पर एक ही वक्त में घास लगाई गई थी। इस ग्राउंड की घास वैसे ही पड़ी है। निजी इदारे के ग्राउंड की घास अच्छी खासी उग चुकी है, जिससे साबित होता है कि जहां पर लगाई गई घास गैर मेयारी है। जहाँ पे काम बहुत स्लो हो रहा है, यहाँ पे एक और निजी इदारा है, कॉलेज है, वहाँ पे इसके पहले साथ ही शुरू हुआ था काम घास लगाने का। तो वहाँ बहुत अच्छी ग्रास है और काफी वो लेवल में भी है और फुल है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ ग्रास कितने अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन उसी के उसी तरह। खिलाड़ियों को यह भी कहना है कि एक तो बाउंड्री की चौड़ाई क्रिकेट ग्राउंड के मुताबिक नहीं और दूसरा ग्राउंड की जमीन भी नाहमवार है। कहा जाता है कि खेलों के मैदान आबाद हों तो अस्पताल वीरान हो जाते हैं, लेकिन मियांवाली में बनाए जाने वाले क्रिकेट स्टेडियम जो हैं ताहाल इनका तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अहमदपुर शर्किया में 3 जनवरी पीडीएम की रैली। मरीम नवाज की आमद पर लीगी कारकुनान की जानिब से तैयारियां अपने अरूज पर हैं। इमरान अकबर अपडेट करेंगे। पीडीएम रैली के हवाले से अगर बात की जाए तो कल जो है मरीम नवाज की आमद है भावलपुर में, और इस हवाले से एक्टिविटी अहमदपुर शर्किया में भी जारी है। हमारे पास सबका एमपीए साहब जो है काजी अदनान फरीद साहब मौजूद है, हम उनसे जानेंगे सर क्या कहना चाहेंगे, तैयारियां कैसे हैं और कल का क्या प्लान है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपने देखा होगा कि शहर में बड़ा जोश जज्बा है कल की रैली के हवाले से, और इंशाल्लाह अहमदपुर शर्किया की तरफ से मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और उसके वोटर्स सपोर्टर्स भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह अपनी कायद मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का इस्तकबाल भी करेंगे और उनके साथ मिलके भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, और इंशाल्लाह ये अहमदपुर की तारीख की सबसे बड़ी मूवमेंट होगी। सर क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी मैं जो पीडीएम ने एक मुतालबा हुकूमत से किया हुआ है कि 31 तारीख तक पाकिस्तान की जान छोड़ दें और अवाम को
सही हुक्मरानी का हक मिलना चाहिए, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आए उसको हुकूमत की अनान सपोर्ट की जाए, ताकि वो पसमानदगी के जिस गड्ढे के अंदर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को डाल दिया गया है, ताकि वो अपनी उस लॉस्ट ग्लोरी को दोबारा से अचीव करे और तरक्की के रास्ते में पाकिस्तान को। सर ये बताइएगा कि अगर पीडीएम कामयाब हो जाती है तो इसमें वजीर आजम और सदर कौन मुंतखब होंगे? जनाब ये तो जाहिर है कि एक इलेक्शन का रिजल्ट होगा, उसके मुताबिक मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को एक डूबी हुई मईशत को 5 साल के अंदर खड़ा कर दिया था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान की हुकूमत मिलेगी इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन के बाद। हाँ जी, इस वक्त अगर बात की जाए भावलपुर में जो मरियम नवाज साहिबा की आमद है, इस हवाले से जो तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर जारी हैं। ऊन कुर्बान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। सरगोदा में हुकूमत के सेहत की सहूलियात की फराहमी के दावे। डिवीजन के सबसे बड़े DHQ टीचिंग अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 3 रोज से खराब है। शहरी खार होने लगे, मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात के बुलंदो बांग दावे खोखले निकले। सरगोदा डिवीजन के सबसे बड़े DHQ टीचिंग अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई। वाहिद सिटी स्कैन मशीन गुज़श्ता 3 रोज से खराब होने के बायस शहरी खबार होने लगे। मीलों सफर करके इमरजेंसी की सूरत में आने वाले शहरियों को प्राइवेट अस्पताल रेफर किया जाने लगा। गरीब शहरी कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में सिटी स्कैन के 10 से 15 हजार नहीं दे सकते। कम तो ही बच्चे बजना, चलो ऑपरेशन हो वंदा था गुआ पड़स कम भी रहे, पर गरीब बंदे हैं बाहर का सिवाय की दाई ना सकते। मेरे वालिद साहब को डॉक्टरों ने स्किन के बारे में बताया, हम इधर स्किन करवाने आए हैं तो ये कह रहे हैं जी हमारे पास तो मशीन खराब है। MSDHQ गुलाम शबीर ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। रेडियोलॉजिस्ट के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट और समाही सर्विस के बायस सिटी स्कैन मशीन बंद है, 2 से 3 रोज में फाल कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात की फराहमी के बुलंदो बांग दावे तो किए जाते हैं, लेकिन डिवीजन के सबसे बड़े DHQ टीचिंग अस्पताल में वाहिद सिटी स्कैन मशीन गुज़श्ता 3 रोज से खराब पड़ी है, जबकि शहरी मीलों सफर करके यहां पर आकर खबार हो रहे हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। जहानिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया फ़रोश की फराहमी मुकम्मल तौर पर यकीनी नहीं बनाई जा सकती। पुल 14 पर कायम यूटिलिटी स्टोर पर गुज़श्ता 15 रोज से आटा भी दस्तयाब नहीं। शहरियों ने अशिया की फराहमी न होने पर शिकवा किया। माजिद असलम की रिपोर्ट। जहानिया में यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की किल्लत है। पुल 14 पर कायम यूटिलिटी स्टोर पर गुज़िश्ता 15 रोज से आटा दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से गरीब तबका परेशान है। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर सहूलियात फ्राहम नहीं की जा रही और न ही अशिया की मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि घी या चीनी की खरीदारी पर साबुन, सर्फ या दीगर अशिया की खरीदारी भी शर्त है, वरना घी चीनी नहीं दिया जाता। चीनी दे दो जनाब, उन्होंने मैनू नहीं दी। मेरे होंदियां ही दूसरा बंदा आया, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਖੇ नहीं जी ਅਸੀਂ नहीं दे सकते, कोई और सौदा नाल खरीदो। शहरी का कहना था कि अगर किसी के पास दूसरी अशिया की खरीदारी के लिए रकम मौजूद ना हो तो वो क्या करे। एक आदमी के पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, उसके पास सिर्फ गुंजाइश ये है कि मैंने चीनी और घी लेना है और दूसरी चीज की उसको जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो ये उसके ऊपर शर्त लगाकर उस गरीब आदमी को नहीं देता। हम जाएं या दूसरा जाए, कोई भी जाए, किसी को ये चीज जो है ना जरूरत के मुताबिक नहीं देता। इस मामले पर स्टोर इंचार्ज शहबाज ने बताया कि जो सामान स्टोर पर मौजूद है वो ग्राहकों को दिया जा रहा है। हम जो सामान हमारे पास पड़ा है वो सब अवेलेबल है, आपके सामने पड़ा है, जो स्टॉक भी पड़ा है सब इंशाल्लाह आवाम को मिल रहा है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर हुकाम से अशिया की किल्लत और फ्राहमी न होने पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। माजिद असलम, रोहित, जहानिया। MWMC की बात करेंगे। मुल्तान में MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। मैनेजर्स और मॉनिटरिंग अफसरान के इतवार की छुट्टी आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। MD ने कहा कि सफाई के लिए सेक्टर और वार्ड वाइज प्लान तैयार किया जाए। फखरुल इस्लाम डोगर ने मजीद कहा कि कंपनी के पास ज़ेरे इल्तवा तमाम बिल्स की अदायगी कर दी गई है। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। मैनेजर्स और मॉनिटरिंग अफसरान के इतवार की छुट्टी आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। सफाई के लिए सेक्टर और वार्ड वाइज प्लान तैयार किया जाए। कंपनी के पास ज़ेरे इल्तवा तमाम बिलों की अदायगी कर दी गई है।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गरीब कबायली लोगों में बिस्तर तकसीम। कमिश्नर डीजी खान और वज़ीर आला पंजाब के भाई ने गरीबों में गर्म बिस्तर तकसीम किए। गरीब लोगों ने नए बिस्तर मिलने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कबायली इलाकों में पनाहगाहें भी बना रहे हैं, कमिश्नर का ऐसा कहना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गरीब कबायली लोगों में बिस्तर तकसीम किए गए। कमिश्नर डीजी खान और वज़ीर आला पंजाब के भाई ने गरीबों में गर्म बिस्तर तकसीम किए। गरीब लोगों ने नए बिस्तर मिलने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शुक्रिया भी अदा किया। कमिश्नर ने कहा कि कबायली इलाकों में पनाहगाहें भी बनाई जा रही हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान और ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर एंड रिसर्च एसोसिएशन के माबैन मुआहिदा तय पा गया। अमन के फरोग, तालिबात और एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग के लिए मुआहिदा किया गया। वीसी डॉक्टर उज़मा कुरैशी और ह्यूमन हेल्थ के इसरार अहमद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। तालिबात को मुआशरे में अमन का सफीर बनाने के लिए सरगर्मियां की जाएंगी। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान और ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर एंड रिसर्च एसोसिएशन के माबैन MOU साइन हो गया। मुल्तान में इश्तिहारी मुजरिम पकड़ने वाले पुलिस अफसरान के लिए इनामात। बीओ स्टाफ ने 32 अफसरान को सर्टिफिकेट और असनाद दी। इनामात SP इन्वेस्टिगेशन आमिर खान न्याजी की जानिब से दिए गए। पुलिस ऑफिसर्स इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे, SSP का ऐसा कहना है। मुल्तान में इश्तिहारी मुजरिम पकड़ने वाले पुलिस अफसरान के लिए इनामात तकसीम किए गए। PO स्टाफ के 32 अफसरान को सर्टिफिकेट और असनाद दी गए। इनामात SSP इन्वेस्टिगेशन आमिर खान न्याजी की जानिब से दिए गए। SSP ने कहा कि पुलिस ऑफिसर इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। बार इलेक्शंस की बात करेंगे। रहीम खान डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख। वोकला के 2 ग्रुपों ने अपने उम्मीदवारों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चीफ इलेक्शन कमेटी मोहम्मद फारूक फरीन ने कमेटी के कागजात नामजदगी वसूल किए। ग्रैंड वोकला अलायंस और लायंस डेमोक्रेटिक मूवमेंट से इल्हाक इत्तेहादियों ने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। नायब सदूर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह, मियां फाहद मोनीर और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इफ्तिखार हुसैन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। 9 जनवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। रहीम यार खान से आपका अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। रुख करेंगे लिया का। लिया में LHV एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। तकरीब में सूबाई जनरल सेक्रेटरी एपका पंजाब सैयद नादिर शाह ने शिरकत की। अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। LHV एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने अपनी तकरीब के अंदर अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। इस वजह अगर 9 मुंतखब सदर सेक्रेटरी और इसके साथ दीगर ओहदेदारान से जो है जिलाई सदर पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन एहसानुल अस्याल ने हल्फ लिया। इन 9 मुख्तलिफ सदर मसद माजूम से बात करते हैं। बताइएगा आज की आपने हल्फ उठा लिया तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो सबका बहुत थैंक यू करूंगी कि हमें इतना ऑनर मिल रहा है यहाँ पे, और स्पेशल एहसानुल्लाह साहब का थैंक यू सो मच, और अयूब अंसारी साहब का थैंक यू सो मच कि इन्होंने हमें हमें प्लेटफॉर्म दिया हमारी एसोसिएशन को बनाने के लिए, इसको अमल में लाने के लिए हमें सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। और हमारी एसोसिएशन का मकसद ये है कि हमारी तमाम मसाइल जो से हैं हम उनको हल करवाने के लिए हमें जो प्लेटफॉर्म मिल गया हमें इसके लिए इन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हैं जिसकी वजह से हम अपने एसोसिएशन को काफी आगे तक लेके जा सकते हैं। बिल्कुल मसाइल के हल के लिए प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो यहाँ पर जिला सदर से बात करते हैं। सर आप पैरामेडिकल स्टाफ के सदर हैं तो क्या कहेंगे आज अपने हल्फ लिया इन ओहदेदारान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आज ये बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारी बहनों LHV एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट बॉडी का क्याम अमल में लाया गया और ये बड़ी पुरवकार तकरीब यहाँ पे इवेंट्स पे हुई है। तो इंशाल्लाह हम मिलजुल कर जो है अपनी बहनों के मसाइल हल कराएंगे। ये भी हमारे साथ हैं, पहले भी हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी आवाज़ मीडिया के जरिए काम बाला तक पहुँचाएंगे और अपने तमाम मामला आसान तरीके से हल करवाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मसाइल जो हल किए जाएंगे। सूबाई जनरल सेक्रेटरी एपका हेल्थ यूनिट नादिर शाह साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे मैं अपने LHV एसोसिएशन का तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी बहनों को,
और ये भी इनसे वादा हम करते हैं कि एपका हेल्थ पंजाब जब भी ये पुकारे गए हम इनके शाना बशाना इनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, एपका हेल्थ पंजाब के जो अहदेदारान हैं वो भी इस बात का अज़म कर रहे हैं कि LHV एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए वो भी इनके साथ भरपूर अंदाज से साथ खड़ेंगे और इनका यही कहना है कि आज जो LHV एसोसिएशन के 9 मुतल्लिक़ अहदेदारान ने अपने अहदे का हलफ उठाया है। तो शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। महकमा ज़राअत की बात करेंगे। महकमा ज़राअत तौसीक़ के माहिरीन की काश्तकारों को गंदम की फसल को पहले पानी के बाद अच्छी मैनेजमेंट से बेहतर करने की हिदायत। गंदम के लिए गैर जरूरी तौर पर यूरिया का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया। अहम तरीन ज़राई फसल गंदम की बेहतर मैनेजमेंट करके इससे ज्यादा मिकदार हासिल की जा सकती है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मुल्तान शेख यूसुफ रहमान का कहना था कि पहली अबपाशी के बाद गंदम की फसल में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का हमला ज्यादा हो गया है। काश्तकारों को चाहिए कि जड़ी बूटियों का बर वक्त तदारुक करें ताकि पैदावार मुताबिक हो। मुतल्लिक़ खादों का इस्तेमाल भी आएगा पानी के साथ ना। रकबे की जरखेजी और उसके टेक्सचर को मद्देनजर रखते हुए खादों का इस्तेमाल जो है ना वो ज़राई कारकुनों के मशवरे से करें। महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम की फसल से जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए हुकूमत मखसूस ज़राई अद्वियात पर 250 रुपए फी एकड़ पर सब्सिडी फराम कर रही है। माहिरीन ने काश्तकारों को हदायत की हैं कि खादों का इस्तेमाल महकमा ज़राअत के अमले की मशावरत से करें। यूरिया के गैर जरूरी इस्तेमाल से गुरेज करें। पानी लगाने के बाद वतर हालत में चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का कंट्रोल जो है ना वो लाजिम करें और जड़ी बूटियों की जो भी वीडिसाइड्स अवेलेबल है मार्केट में सिलेक्टिव के ऊपर जो है ना 250 रुपए सब्सिडी भी है गवर्नमेंट की तरफ से ना। काश्तकार गंदम की फसल से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत की तजावीज़ पर अमल करते हुए इसकी मैनेजमेंट बेहतर बनाएं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अत्थर लशारी, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजी खान कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स गाला के लिए स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस का इनेकाद होगा। एथलेटिक्स, आर्चरी, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, साइकिलिंग के मुकाबले होंगे। मजीद जाने के आशिर इशफाक से आशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स गाला लाहौर में होने जा रहा है 6 से 8 जनवरी को और बाकायदा तौर के ऊपर डेरा गाजी खान में भी इसके हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डेरा गाजी खान में इंटर डिस्ट्रिक्ट टीमों के माबैन मुकाबले जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर के ऊपर डिवीजनल सतह पर एक टीम जो है वो बनाई जाएगी जो लाहौर जाकर मुकाबला करेगी। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर खुद इसकी निगरानी करें। मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स गाला के हवाले से तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और टीमों को कब तक रवाना किया जाएगा? जी, महकमा स्पोर्ट्स पंजाब जो है 6 से 8 तक 3 डेज के लिए वहाँ पर इवेंट्स इनकाद कर रहा है जिसमें 5 गेमें आर्चरी, बैडमिंटन और उसमें लॉन टेनिस, एथलेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। उनके लिए हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पर आज इनकाद किए हैं और साइकिलिंग का इवेंट जो है वो हम कल इनकाद कर रहे हैं। तो इसमें चारों डिस्ट्रिक्ट्स की टीमों ने भरपूर शिरकत की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हर तरह के कंपटीशन जारी हैं। सर स्पोर्ट्स गाला जो होगा इसमें बाकायदा तौर के ऊपर गर्ल्स बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करेंगी? जी, इसमें बिल्कुल आधा कॉन्टिजेंट 65 लोग जा रहे हैं। 32 लोग जो हैं वो बॉयज़ हैं, 32 गर्ल्स हैं और ये पहली दफ़ा इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन डेरा गाजी खान से जा रही है और इनको तमाम फैसिलिटी। आशिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सादिकाबाद में अलसी के लड्डू शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। लड्डू खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं शहरियों का ऐसा बताना है। अपडेट करेंगे मलिक जावेद अनवर। जिमें जिमें सर्दी जी है जोबन से जा रही है इवें में शहरी भी जो है सर्दी तो बचने वास्ते जी है गर्मा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जी मैं मौजूद हाँ इस शॉप की जी है अलसी के पिन्नी के लड्डू जोड़े ने बड़े मशहूर ने। शहरी जोड़े ने खरीदने वास्ते आन डे ने। कुछ शहरी हमारे साढ़े मौजूद ने। सर दसिएगा जोड़े है तुम इतने आए हो अलसी के लड्डू लैन वास्ते की कहना चाहोगे? मैं भी जनाब अलसी के लड्डू ही खरीदने वास्ते आया वहाँ और बच्चों की बड़ी डिमांड सी और बड़िया के नाल बच्चे बड़े शौक नाल खाते हैं। हर साल मैं इतों खरीद के बरूने शहर भी अपने अजीज़ा रिश्तेदारों को भेजदा वां और इन्हों का क्वालिटी बड़ी अच्छी आ और जिहदी वजह तो पसंद ने मैं हर साल इतों लैके जाना वां। और बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खैर रोड पक्का में हजरत हाफिज मोहम्मद अकरम रहमतुल्लाह अलैह का 175वां सालाना उर्स ज़ायरीन के दरबार पर आमद का सिलसिला जारी है। उर्स में सजादा नशीन मियां मसूद आकिल जबला कुरैशी की शिरकत, दरबार पर महफिल मिलाद और कवाली का इनेकाद किया गया है। अहवाल जाने के नुमाइंदा रोही आशिक हुसैन कुरैशी से। आशिक बताइएगा।
जी बिल्कुल, आज करोड़ पक्का में हजरत हाफिज मोहम्मद अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं वो जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन जो हैं वो दरबार पर हाज़िरी दे रहे हैं और अपने मन की जो मुरादें हैं वो पा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ दरबार हाफिज मोहम्मद अकरम रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन मियाँ मसूद आकिल जबला कुरैशी साहब मौजूद हैं। मजीद हम उनसे बात करेंगे। जी मियाँ साहब बताइएगा, कितवां सालाना उर्स मनाया जा रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जी 175वां उर्स है, तो इसमें चिराग बंदी होती है, उसके बाद दिन को नात खानी होती है। अभी ये कवाली शुरू होगी जो कि रात तक रहेगी। तो इस दफ़ा कोरोना की वजह से हमने कुछ शॉर्ट किया है, नहीं तो अभी भी लोग दूर दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उर्स में शिरकत की है। तो ये इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जैसे कि सजादा नशीन मियाँ मसूद आकिल जबला कुरैशी साहब का कहना है कि 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात होती हैं। यहाँ पर महफिल जो है नात भी कराई जाती है और कवाली जो है वो भी कराई जाती है। और उनका ये कहना है कि मुल्क भर से यहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं। कोरोना की वजह से इस मरतबा जो है ज़्यादा इंतजाम नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर कोरोना SFPs का भी ख्याल किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि क़यामत का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।